एवरीवन, हमने हमारी पुरानी वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। टर्म्स, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज सेट 10 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनकी डिग्रीज हमें फाइंड करनी है। फॉर द फर्स्ट पार्ट वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अच्छा, डिग्री फाइंड करने के लिए हम पहले रिकॉल करते हैं कि डिग्री होता क्या है। डिग्री क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, अगर हमारे इसी पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है? 2। इसमें यहाँ पर 1 है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? 2। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के लिए हमारी डिग्री कितनी है? व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट? व्हाट इज द डिग्री हियर? You have y raised to the power 3, y raised to the power 1 and y raised to the power 0। तो हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है? 3। पावर कितनी जा रही है? 3। तो हमारी डिग्री कितनी हो जाती है? 3। नाउ वी हैव अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल होता है ना, तो हम -9 को कैसे लिख सकते हैं? एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0, राइट? राइट। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। And what about the last part? You have z raised to the power 1, and this can be written as z raised to the power 0. So what is the degree here? Degree is 1 in the fourth part. So for the first part, our degree is 2. For the second part, the degree is 3. For the third part, the degree came out to be 0. And for the fourth part, the degree is 1. I hope you'll all be able to find out the degrees now. Let's go on to the next question. Question number 2. Write polynomials of degrees 1, 2, and 3. So we need to write down polynomials of degree 1. Okay, let's start with degree 1. So degree 1 के लिए हमारा पॉलिनोमियल, अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर 1 जा रही हो। सो फॉर 1 टू बी द हाईएस्ट पावर वी कैन राइट 8m लिख सकते हैं। We can write 7n minus 1. We can also write minus 1 by 2a लिख सकते हैं, because in सब में if you check the power, the degree is 1. The highest power that the variable is taking is 1. In सब में degree 1 है, तो these polynomials will work for us. Let's talk about degree 2. When the degree is 2, that means we are not talking about a quadratic polynomial. Quadratic polynomial में degree 2 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 8m square plus 3, or we can write minus 11k square. We can write this, or we can write minus 7n plus n raised to the power 2 और n square. इन सब में अगर आप नोट करोगे तो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है? पावर 2 जा रही है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, and all these variables are okay. You can frame any other polynomial up. It is entirely up to you what you want to make. I'm just giving you a few examples. Moving on to the third one with degree 3. Now we are talking about a cubic polynomial. Cubic polynomial के लिए हम कुछ examples लिख सकते हैं, जैसे 2m raised to the power 3 plus 4m minus 1. We can write x raised to the power 3 plus x square plus x plus 1. We just have to keep in mind that the variable will take highest power as 3. That's the only thing that we have to keep in mind. Okay, let's move on to the next question. Question number 3.
What are the coefficients of x square and x cube in the polynomial? This is the polynomial that's given to us. First, let's find out where is x square located. ठीक है, हमारा x square की टर्म कौन सी है? ये वाली 6x square plus 6x square. तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो नंबर कोएफिशिएंट क्या होता है? जो नंबर हमारे वेरिएबल के आगे गिवन है. Okay, whatever is given in front of the number, in front of the variable, be it a number or a variable, we call it its coefficient. For example, now that we have to find out coefficient of x square, coefficient of x square in the polynomial x raised to the power 4 minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7. क्योंकि हमें x square का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो हमने पहले x square की टर्म आइडेंटिफाई करी, और टर्म आइडेंटिफाई करने के बाद हमें देखना है कि x square के आगे इस टर्म में और क्या एक्स्ट्रा है. We have a 6 that is here extra, that becomes the coefficient of x square. Similarly, ऐसे ही अगर हम x cube के कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, तो x क्यूब के कोएफिशिएंट क्या होगा इस पूरे पॉलिनोमियल में? बताओ, ऑब्जर्व एंड टेल मी. द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोएफिशिएंट में ढूंढने के लिए पहले x क्यूब की हमने टर्म फाइंड आउट करी, माइनस 3x क्यूब. अब x क्यूब तो इस टर्म में है, बट इस टर्म में और क्या एक्स्ट्रा है? माइनस 3. तो इसलिए हम इसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? माइनस 3. अच्छा, टाइप इन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन द कमेंट बॉक्स. ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the coefficient of z in the polynomial 4z cube plus 4z square minus 11? Now, some children, कुछ लोग बोलेंगे कि 4 हो सकती है, कुछ बोलेंगे 5 हो सकती है, पर क्या वो सही है? क्या वो सही कोएफिशिएंट है? अगर हमें कोएफिशिएंट z का फाइंड करना है, तो हम z स्क्वायर और z क्यूब का कोएफिशिएंट थोड़ी फाइंड कर रहे हैं जो हम 5 या 4 बोलेंगे. नहीं ना. तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ z वाली कोई टर्म ही नहीं है पूरे पॉलिनोमियल में, तो हम लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल को एज 0 इंटू जी माइनस 11. लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर वुड बी 0 ओनली, तो हम इसको 0 z लिख सकते हैं, राइट. और अब हमारा इस टर्म, क्या अब हम z का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब z है और इस टर्म में z के अलावा एक्स्ट्रा क्या है? 0. तो कोएफिशिएंट ऑफ z in 4z cube plus 5z square minus 11 is 0. Understood how we have done it? Let's go ahead with the next question, question number 5. What is the constant term in the polynomial? Okay, we have this as the polynomial and we have to find out what is the constant term. Constant term क्या होती है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो. और इसमें से कौन सी टर्म ऐसी है? फर्स्ट टर्म हमारी है 9x क्यूब, सेकेंड है 5x स्क्वायर, थर्ड टर्म इज माइनस 8x एंड फोर्थ टर्म इज माइनस 10. इनमें से कौन सी टर्म्स के साथ वेरिएबल नहीं है? वेरिएबल सिर्फ माइनस 10 के साथ नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 10. बहुत सारे बच्चे इसको सिर्फ 10 लिख देते हैं, तो कीप इन माइंड कि इसकी कांस्टेंट टर्म माइनस 10 है. हम आगे साइन भी कंसिडर करते हैं, जैसे हमने कोएफिशिएंट में भी कंसिडर किया था नेगेटिव साइन, वैसे ही कांस्टेंट टर्म लिखते हुए भी आप नेगेटिव साइन कंसिडर करोगे. वी डोंट लीव इट बिहाइंड. ओके, next with this we are done with our exercise set 2.1. We will continue with 2.2 and its exercise in the next video. See you all there. Bye.